राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello, welcome back to the another part of the highest ideal of cure covering from नागेंद्र बाबू। ये सेकेंड एफोरिज्म को हम समझ रहे थे नागेंद्र बाबू में से, जिसमें से हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स को कवर अप किया था। और अब हमारा थर्ड पॉइंट और कॉम्प्रहेंसिव प्रिंसिपल के 20 पर जो लास्ट 2 पॉइंट्स है वो हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले कल जो भी हमने कवर अप किया था उसको एक क्विक रीडिंग के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। After explaining the mission of physician as to restore the sick to health, that is to cure, Hahnemann proceed to explain in the second aphorism the highest ideal of cure. यानी कि मिशन ऑफ फिजिशियन जैसे ही हमें फर्स्ट एफोरिज्म में पता चल गया, वैसे ही सेकंड एफोरिज्म में हैनेमन सर ने ये क्लियर किया कि जो मिशन है कि सिक को क्योर करना, तो उस क्योर के लिए भी आइडियल क्या है वो सेकंड एफोरिज्म में हमें पता चला। If restoring sick to health to cure is the only mission of physician, what are the goals to achieve in the process of cure? How to identify the highest ideal of cure? The highest ideal of cure can be understood under three different headings. First, the cure must be rapid, gentle, and permanent. Second, the cure means removal and destruction of disease from its root. Third, the cure must be based on most reliable, most harmless, and easily comprehensible, understandable laws and principles. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो था उसके बारे में देख लेते हैं इन डिटेल। द क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। रैपिड, द क्योर मस्ट टेक्स प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल because the dangerous the disease, the more damaging it is to body. The longer time taken to cure a patient, the severe damage will be. No patient wants to suffer for a longer time. So, considering this both, that patients don't want to suffer for a long time, and if long time has taken, it damages more the body. So, considering both of this point, it is advisable to cure the patient in the fastest way possible. In the history, we see greatest physicians like Hippocrates, Dioscorides, Asclepius, and Paracelsus preaching the same thought of rapid, gentle, and permanent cure. In his chronic disease, Hahnemann comments the C2 at Jucando quickly, safely, and pleasantly of Celsus. The patient may reasonably ask from हिज फिजिशियन क्विकेस्ट पॉसिबल रिलीफ। हो सकता है पेशेंट भी जाके पूछे फिजिशियन से कि हो सके उतना जल्दी उसको रिलीफ दिला दो। ही कैन राइटली एक्सपेक्ट दिस इन एक्यूट डिसीज स्प्रिंगिंग फ्रॉम ओकेशनल कोजेज, ऑल्सो इन वेल डिफाइंड इंटरमीडिएट डिसीज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। इसको हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो पहला वीडियो देख के आओ, ठीक है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, ईजी है इंग्लिश भी। इन ऑर्डर टू क्योर अ पेशेंट स्पीडली, it is not logical to apply the harmful procedures that make the patient's condition worse. पेशेंट की कंडीशन वर्स बना दे, ऐसा कोई स्पीडी क्योर भी किस काम का। इसीलिए क्योर भी जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। Hahnemann sir was totally disappointed by orthodox way of treating the patient. The Bruchio's physiological system is one such procedure. The cruel methods like leeches application, venesection, cetones, issues, purgation, and blistering, etc., were employed. This procedure made the patient weak and left him incurable by draining its vital power out. Hahnemann strongly advocated the harmless, well proven medicines in homeopathy. This made homeopathy the one and only harmless method of therapeutics in the world. The treatment of sick must be done always in a gentle manner. A temporary relief of symptoms for a considerable period of time is not called as cure. Palliation and suppression should not be aim of physician but cure. Cure is alteration of already altered state of health to its normal state. This must be done in a permanent manner also. The healthy state has to be brought back into to According to the idealistic view of homeopathy, the cure is not just removal of one pathological condition but the removal of all existing symptoms of the patient in a rapid, gentle, and permanent manner. यहाँ तक हमने कवर किया क्योर में जो फर्स्ट 3 आइडल्स है, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, उसके बारे में। सेकंड पॉइंट है द क्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिसीज फ्रॉम इट्स रूट। In second context, we read the removal and annihilation of the disease in its whole extent. It is a holistic concept. The treatment should not only remove the local symptoms and the most troublesome problems of the patient, but also bring back the easiness of the patient which he enjoyed in his previous healthy days. In short, cure must make the patient physically, socially, psychologically fit. After the treatment, both the internal man as well as external man must be fit and fine.
The dominant school tries to remove the disease manifestation from the existing area by strong medications. This in turn drives the disease inwards. In this process, the disease is disappearing from one place and appearing in another place. This is suppression and not cure. Such condition, the allopathic physicians who is not aware of suppression cause this new disease with other name. This is non-desirable and is very harmful too. Hence, each and every disease has to be removed totally in order to achieve the cure. To achieve cure in a perfect manner, Dr. Herring narrated the law of direction of cure. The cure must take place from above downward, within outward, from most important organ to least important organ, and in reverse order of appearance of symptom. दिस इज फेमसली नॉन एज द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जिसको हम इसकी बाद की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या है. ये 4 सब पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थर्ड इज द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड इजीली कॉम्प्रहेंसिबल लॉज एंड प्रिंसिपल्स. यहाँ से हमारा जो रिविजन यहाँ ख़त्म होता है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है. सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखा कि क्यों हमें क्योर को मतलब क्योर दिलाने के लिए डिसीज को रिमूव करना है, कैसे कि डिस्ट्रक्ट करना है उस डिसीज को उसके रूट से, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, सप्रेस करेंगे तो डिसीज फिर से रीअपियर होगा और हार्मफुल वे में अपियर होगा. इसीलिए सारे सिम्टम्स को उसके रूट से ख़त्म करना ज़रूरी है और एक होलसम कॉन्सेप्ट है ये. तो ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्योर जो है वो फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल तीनों एस्पेक्ट के होगा और ट्रीटमेंट के बाद इनर और एक्सटर्नल दोनों मेन है वो फिट और फाइन होने चाहिए. अब देखते हैं आज का हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसको. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट. जो क्योर है वो हाइएस्ट आइडियल का क्योर है वो है रैपिड, जेंटल और परमानेंट. टू अचीव दिस हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर द फिजिशियन हैज़ टू अडॉप्ट द मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस प्रोसीजर्स. ये हाइएस्ट आइडियल को अचीव करने के लिए जो रास्ता फिजिशियन अपनाए वो भी भरोसेमंद और हार्मलेस होना चाहिए. एक्सपीरियंस टीचर्स दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया इज द ओनली क्यूरेटिव लॉ. और एक्सपीरियंसेस से ये पता चलता है कि जो लॉ ऑफ सिमिलिया है वही एक ऐसा लॉ है जो क्यूरेटिव लॉ है. दिस सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर इज प्रेजेंट इन नेचर. और ये एक नेचर का लॉ है और नेचर सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और हमेशा रहने वाली चीज़ है. और सेम टाइम पर नेचर है वो सेफ है और इजी टू अप्लाई है, और फिजिशियन है वो ये मेथड को अप्लाई करके केसेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. इसीलिए हैनेमन सर ने इस नेचर लॉ को सक्सेसफुली ऐसे मोल्ड किया है और ऐसा होम्योपैथी लॉ ऑफ क्योर बना दिया है ताकि लोग इस पर भरोसा कर सकें, क्योंकि नेचर कभी चेंज नहीं होगा तो नेचर पे बेस्ड चीज़ भी कभी चेंज नहीं होगी और नेचर कभी भी अपने बच्चों को हार्म नहीं कर पाएगा. इसीलिए नेचर हमेशा क्योर दिलाने के लिए सेफ है, इजी टू अप्लाई है एंड गुड टू गो है. और इसीलिए नेचर्स लॉ ऑफ क्योर ही हमारा होम्योपैथी का लॉ ऑफ क्योर बनता है. और होम्योपैथी का लॉ ऑफ क्योर है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर. वो एक नेचर का ही लॉ है जिसको हैनेमन सर ने मॉडिफाई किया है, इजीली एप्लीकेबल बनाया है. इसीलिए होम्योपैथिक लॉ है वो सेफर है, अनचेंजेबल है, अनलाइक एलोपैथिक थियोरीज. जैसा एलोपैथिक थियोरीज है वो बार बार चेंज होता है, तो यह वैसा नहीं है. Nature is the most reliable and eternal, but at the same time nature's law is not totally safe to apply as it is. Nature's law जैसा है वैसा उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. हैंस द जैसा कि गुजराती में एक कहावत है हमारे कि झेरनु मारण झेर, मतलब झेर की काट है वो झेर से ही होती है, विनम है वो विनम से ही गो थ्रू होगा. तो अब सारी चीज़ों में हम उसको उस वे में अप्लाई नहीं करेंगे. इसीलिए हैनेमन सर ने कुछ मॉडिफिकेशंस करके पोटेंटाइजेशन, मिनिमम डोज, ये सारी चीज़ें लाकर उसको मॉडिफाई किया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर बनाया और उसको मॉडिफाई करने के बाद हम उसको सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं. हैंस द फिजिशियन ऑफ पास्ट कुड नॉट adopt in all cases. Hahnemann molded this nature's law successfully and developed the homeopathic law of cure. Homeopathic law of cure, similar syllabus curenture, is based on nature's law. Hence, homeopathic law is safer and unchangeable like allopathic theories. To make the system of homeopathy most reliable and sound, the physician has to apply only the well-proven medicine. जो होम्योपैथी का सिस्टम है उसको ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए फिजिशियन को अप्लाई करनी है वेल प्रूवन मेडिसिन. Homeopathic medicines are experimentally proven and reproved on healthy human beings on both sexes and all age groups. और इसीलिए होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो भी ह्यूमन बींग्स पे प्रूव की जाती है, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट सेक्सेस में. ओके, ये बात की हमने थर्ड पॉइंट की जो हमारा है द क्योर मस्ट बी मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस एंड ईजीली कॉम्प्रहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल लॉ एंड प्रिंसिपल. अब देखते हैं कॉम्प्रहेंसिबल जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या है, उससे ऑथर है वो क्या कहना चाहते हैं.
इजीली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल। कॉम्प्रहेंसिबल वर्ड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडेबल, यानी जिसको हम अच्छे से समझ सके, इजीली समझ सके, वैसी वाली चीज़। तो द वर्ड कॉम्प्रहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। दिस लास्ट क्राइटेरिया ऑफ द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर एक्सप्लेन बाय हैनेमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ देम। ये है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। द थियरीज ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल विल बी कन्फ्यूजिंग टू इवन वेल एजुकेटेड पर्सन्स। जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल की थियरीज है, जो एलोपैथिक स्कूल्स की थियरीज है, वो एजुकेटेड पर्सन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। इसीलिए द टर्म यूज्ड आर सो डिफिकल्ट टू फॉलो इवन बाय एजुकेटेड, और इसीलिए एजुकेटेड के लिए भी जो टर्म्स उसमें यूज़ होती है वो फॉलो करना हार्ड है, डिफिकल्ट है। येट दे फेल टू फाइंड आउट द रिलायबल क्यूरेटिव अप्रोच टू डिसीज, और इसके बावजूद भी कोई रिलायबल ट्रस्ट वर्दी क्यूरेटिव अप्रोच तो उनके पास है नहीं किसी डिसीज को क्योर करने के लिए। दिस theories change from time to time in the name of scientific advancements. साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पर ये जो थियरीज है वो बार बार बदलती रहती है। टूडेज एडवांस थियरीज आर टुमोरोज जोक। आज की जो एडवांस थियरी है वो कल का जोक बन जाती है उनके लिए। हैनेमन सीज वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस एवर चेंजिंग प्रिंसिपल्स। हैनेमन से बताते हैं कि हम ऐसे एवर चेंजिंग प्रिंसिपल्स पे तो कैसे ही भरोसा कर ले। जो बदलता रहे उस पर भरोसा करना, जो रंग बदले उस पर भरोसा करना क्या आसान है, और क्या फ़ायदा फिर जब वो रिजल्ट भी अच्छे से नहीं दिला सकते। एक बार ये पैराग्राफ को पढ़ो और समझो कि कितनी लाइफ रिलेटेड बात की है यहाँ पर। मैन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। अब देखो, मैन एक नेचर का पार्ट है। डिसीज आर ऑल्सो कोज्ड बाय नेचुरल डायनामिक फोर्स कॉल्ड मियाजम्स। डिसीज है वो भी नेचुरल डायनामिक फोर्स से होते हैं, जिसको हम मियाजम्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। सो द क्यूरेटिव प्रिंसिपल्स मस्ट ऑल्सो बी अ नेचुरल लॉ। तो जो क्यूरेटिव प्रिंसिपल है वो भी कोई नेचर से रिलेटेड चीज़ ही होनी चाहिए। दिस नेचुरल लॉ इज इजीली अंडरस्टैंडेबल इवन टू अ लेमैन। ये जो नेचर का लू है वो लीमैन को भी समझ में आ जाए, इतना ईजी है। दिस लू सिमिलर सिमिलबस क्यूरेंचर इज एक्सप्लेन बाय हैनमन इन एफोरिज्म 26। ये जो हमारा लू है, होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर सिमिलर सिमिलबस क्यूरेंचर, ये हैनमन सर ने 26 एफोरिज्म में भी अच्छे से समझाया है। इट इज़ वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन एज लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ही चीज़ से ठीक करो। एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और ये समझना भी उतना ही आसान है। In short, we are employing the similar artificial medicinal forces to remove the artificial disease forces। मतलब हम similar artificial forces को बॉडी में अप्लाई कर रहे हैं वैसी ही natural disease forces को रिमूव करने के लिए। दिस इजीली अंडरस्टैंडेबल होम्योपैथिक लो कैन फुलफिल द ड्रीम ऑफ हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। और इतना आसान जो ये लो है होम्योपैथी का, वही हमारी हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर का ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। और इसीलिए हैनेमन सर नेविगेट करते हैं इसके थ्रू फिजिशियंस को कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है। द फिजिशियन हैज़ टू कीप इन माइंड दैट क्योर इज नॉट एन एक्सीडेंटल वन बट बाय परफेक्टली फॉलोइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया। कभी भी क्योर है वो एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, लॉ ऑफ सिमिलिया को प्रॉपरली फॉलो करें वैसा होना चाहिए। वी कैन अचीव क्योर इन रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट मैनर। और सिर्फ होम्योपैथी से ही हम रैपिड, जेंटल, परमानेंट मैनर में क्योर दिला सकते हैं। अब हम आज के जो 2 पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। Third point, the cure must be based on most reliable, most harmless and easily comprehensible, understandable laws and principle. From the above discussion, it is clear that the highest ideal of cure must be rapid, gentle and permanent. To achieve this highest ideal of cure, the physician has to adopt the most reliable and the most harmless procedures. Experience teaches that the law of similia is the only curative law. This similia similibus curature is present in nature. Nature is the most reliable and eternal, but at the same time, the nature's law is not totally safe to apply as it is. Hence, the physician of the past could not adopt in every cases. Hahnemann molded this nature's law successfully and developed the homeopathic law of cure. Homeopathic law of cure, similar similibus curature, is based on nature's law. Hence, homeopathic law is safer and unchangeable like allopathic theories. To make the system of homeopathy most reliable and sound, the physician has to apply only the well-proven medicine, and hence homeopathic medicines are experimentally proved and reproved on healthy human beings of both the sexes and all age groups. Easily comprehensible principle. The word comprehend means to understand. The last criteria of the highest ideal of cure, explained by Hahnemann sir, is the most important of all them. The theories of the orthodox school will be confusing even to a well educated person. The terms used are so difficult to follow even to educated, yet they fail to find out the reliable curative approach to the disease. These theories change from time to time in the name of scientific advancement.
Today's advanced theories are tomorrow's job for them. Hahnemann says we cannot depend on these ever-changing principles. Man is the part of nature. Diseases are also caused by natural dynamic forces called miasm. So the curative principle must also be a natural law. This natural law is easily understandable even to a layman. This law, similar syllabus curature, is explained by Hahnemann sir in aphorism 26. It is very simple to explain. Let like be cured by like and easy to understand also. In short, we are employing the similar artificial medicinal forces to remove the natural disease forces. This easily understandable homeopathic law can fulfill the dream of highest ideal of cure. Thus, Hahnemann navigates the homeopathic physician in the voyage to the highest ideal of cure. The physician has to keep in mind that the cure is not an accidental one, but by perfectly following the law of similia, we can achieve cure in a rapid, gentle and permanent manner. होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. कुछ भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जो भी आपके सजेशंस है वो भी ज़रूर बताना. आई विल लव टू रीड दैट, और अगर हो सके तो आई विल डेफिनेटली फॉलो दैट, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ थर्ड ईयर स्टूडेंट. सो वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी है तो बहुत कुछ करना है. आई नो आपको ऑर्गेनिक की वीडियोस बहुत अच्छी लगती है और आप उसको बहुत देखते हो, लाइक करते हो, तो सबके लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस्ड, और भी ऐसी वीडियोस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाती रहूँगी. तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू वंस अगेन. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.